A very good morning in Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing fine. Continuing with chapter number 2, that is forms of business organizations. My dear students, we are done with the sole proprietorship. Its features, its merits, its limitations, as well as its suitability. Right. Today we are going to start the another topic, and that is partnership. Who is a sole trader? A sole trader is a person who carries on a business exclusively on his own account and at his own risk. राइट, सोल ट्रेडर वो होता है जो सारे रिस्क बियर करता है खुद, और इफ देर इज एनी प्रॉफिट so he enjoys that profit alone. Okay, but when we are talking about partnership, according to Indian Partnership Act 1932, this is compulsory to mention. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन. पार्टनरशिप का वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, पार्टनर्स होते हैं इसमें, राइट. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. So there are two things in this. The very first one is, it is the relation between the persons who have agreed to share profits. Who have agreed to share profits. ठीक है. Carried on by all, like suppose it is a firm. अभी सिर्फ सुनो, firm आपको समझ में आएगा what is this firm I'm talking about. Okay, and there are 4 partners in this firm. Number of partners are 4. Partner 1, partner 2, partner 3, partner 4, right? So if we are talking about partnership, it is the relation between persons who have agreed to share the profit and profit of a business. जो ये चारों मिलकर कर रहे हैं, और अगर प्रॉफिट होता है इस फर्म को, ये चारों एक साथ उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे. और एनी ऑफ देम, या लेट्स सपोज ये पार्टनर 1 इन सब के लिए एक्ट कर रहा है. आइडिया वॉज हिज, प्लान वॉज ऑफ पार्टनर नंबर 1. वॉट ऑल डज ही नीड वॉज द कैपिटल, फिनेंस. इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसका आइडिया बहुत अच्छा था. पार्टनर 2 ने पैसा लगाया, पार्टनर 3 ने पैसा लगाया, पार्टनर 4 ने पैसा लगाया. जब पैसा लगाया तो ये पार्टनर बन गए. आइदर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, चारों मिलकर इक्वली काम कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. हो सकता है पार्टनर 1 को सिर्फ पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इन लोगों के पास आइडिया नहीं है, इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों ने अपना पैसा लगाया इस बिजनेस में सो दैट दे कैन शेयर द प्रॉफिट, राइट. सो जो पार्टनर 1 करता है इस बिज़नेस के लिए, और फ्रॉम दैट इफ़ दे आर गेटिंग एनी प्रॉफिट, इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, राइट. ये भी हो सकता है कि चारों मिलकर काम करते हैं. सो द पर्सन हु फॉर्म अ पार्टनरशिप आर नोन इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स. दे इंडिविजुअली, जिन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट की है इंडिविजुअली, दे हैव बीन कॉल्ड पार्टनर्स. As I've just said, partner number 1, partner number 2, partner number 3, partner number 4. Individually they known as partners, and collectively they known as firm. Right? We are the member of a firm. Individually they are the partners, but they have created a firm and they are the member of that particular firm. The name under which the business is conducted is known as firm name. जैसे let's suppose राज ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, राज इलेक्ट्रिकल्स. दिस इज़ फर्म नेम, दिस इज़ देयर फर्म नेम, राइट. ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स वगैरह लगाते होंगे, राइट. तो दे हैव क्रिएटेड अ फर्म नेम एंड दैट इज़ कॉल्ड राज इलेक्ट्रिकल्स. टुगेदर दे हैव बीन कॉल्ड फर्म, member of a firm. The name of the firm is Raj Electricals. Individually they are known as partners. I hope this is clear to all of you. Now when partnership is clear to us, then let's have a look on its features. The very first one is formation. See,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के साथ तो नहीं हो सकती है, मतलब पार्टनरशिप तो हो सकती है बट इंडिविजुअल इज रनिंग अ बिजनेस, दैट इज़ नॉट पार्टनरशिप. देयर मस्ट बी एटलीस्ट two persons to create a partnership, right? We need two or more person and at least two persons to create a partnership. This form of organization is governed by, I have told you that mentioning this is most important because this is being governed by Indian Partnership Act 1932, that there must be at least two persons to create a partnership firm. The relation of partnership arises as a result of legal agreement between the partners. See, if let's suppose I have a plan in my mind but my budget is low and you agree to get involved with me, आपने अपना पैसा लगा भी लिया, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, हम बियर कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सारा प्रॉफिट मैम हमें चाहिए. लेट्स सपोज हम बात करते हैं, तो what else I can do, क्योंकि कुछ लीगली तो हमारे बीच में हुआ नहीं है. अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, तो रिलेशन जो होती है पार्टनरशिप के बीच में वो अराइज होती है, एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स दैट वी ऑफिशियली बिकम द पार्टनर्स नाउ, विल बियर ऑल द रिस्क एंड विल एन्जॉय ऑल द प्रॉफिट. The agreement specifies the term and condition of doing the business and sharing of the profit and losses. And then agreement clearly specify the term and conditions, business कैसे होगा और हम लोग प्रॉफिट और लॉसेस कैसे शेयर करेंगे, उसमें एवरीथिंग मेंशन कर दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है, राइट? So that is the formation. It is being governed by Indian Partnership Act 1932, and the relation between the partner arises due to legal agreement. Second point is lawful business. See, the partner must agree to carry on some lawful business, right? Mere holding of property in joint ownership cannot be considered as partnership. See, if you are holding any property अपने जॉइंट मिलकर, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप. कुछ लॉफुल बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है उसके लिए. जैसे टू पीपल आर कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, कि हम दोनों ने मिलकर कुछ डोनेट करना है, ठीक है, सो दैट इज़ द पार्टनरशिप. इफ़ दे आर कंसिडर इट पार्टनरशिप, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप. Partnership must agree to carry on some lawful business only. Got it? राइट? जैसे आप में से 4 लोग कहने लगे मैम हम लोग पार्टनर्स बन गए हैं और हम जगह जगह पर प्लांटेशन करेंगे. दैट इज़ नॉट अ बिजनेस, राइट? दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. The partners must agree to carry on some lawful business out of which they gain some profit or loss. They'll bear the risk. That is business. Unlimited liability. All the partners are liable jointly and severally for all debt and obligation of the firm to an unlimited extent. See, if once they become the partners, they are liable jointly. वो हर चीज़ के लिए liable होंगे. हर डेप्ट के लिए जो पैसा उन्होंने मार्केट से उठाया है, जो ऑब्लिगेशंस आती हैं फर्म्स में, टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट. ईच एंड एवरी, if we are talking about this, then each and every partner will be equally responsible for the liability. If let's suppose resource raw material लाने के लिए मार्केट से पैसा उठाया, if suppose इन्वेस्टर्स से पैसा लिया, कम रह गया था पैसा, कैपिटल की ज़रूरत रहती है अगर हम बिज़नेस करते हैं कोई, उस डेप्ट के लिए ये चारों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे. Okay, it means that if the asset of the firm are not sufficient to meet the obligation of the creditor, the private asset of the partner can be attached to satisfy their claims. See, ये partner number 1, 2, 3, 4, they are the partners. All together they called as firm. And their firm name is Raj Electricals. They become partners. इन चारों का दिमाग चल रहा है बिजनेस में. इन्हें दिखा कि बिजनेस में हम अगर और पैसा लगाते हैं तो शायद हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा. इन्वेस्टर्स से पैसा लिया इन लोगों ने, बैंक से पैसा लिया इन लोगों ने, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म इन एग्रीमेंट विच इज़ बीइंग गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो
दे आर लीगली दी पार्टनर्स, अब ये हर चीज़ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इनसे जो इन लोगों ने पैसे लिए हैं, लेट्स सपोज 50 लाख रुपीज़ लिए हैं, अब ये 50 लाख के लिए ये चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। और इफ़ इन केस इनके जो एसेट्स हैं, प्राइवेट एसेट्स जो हैं इनके, सॉरी फर्म के एसेट्स जो हैं इनके, अगर उस एसेट्स इन केस ऑफ बैंकरप्सी, मतलब ये बिल्कुल इनका दिवालिया निकल जाना हो गया, या कोई प्रॉब्लम हो गई कि बिज़नेस में लॉस हो गया, एक्सट्रीम लॉस हो गया, अब इन लोगों के पैसे कहाँ से दिए जाएंगे? ये या तो पहले फर्म के एसेट्स सेल आउट करेंगे, अगर उससे भी नहीं काम होगा बिकॉज दे आर लीगली दी पार्टनर्स, तो इनके प्राइवेट एसेट्स, इनके चारों के ही प्राइवेट एसेट्स के थ्रू ये लोग पैसे अपने रिकवर कर सकते हैं। The private assets of the partners can be attached to satisfy their claims because they are legally the partners. They are equally responsible for to meet the obligation of the creditors जिनसे इन्होंने पैसा ले रखा है। Next point is risk bearing and sharing of profit. The risk involved in running a partnership is borne by all partners. If there will be any risk, so it will be borne by all partners, and they share the profit and losses of the business in the agreed ratio. It is important to note that sharing of profit is not a conclusive proof of partnership. See, अगर कोई रिस्क होता है बिजनेस में, जैसे ये भी रिस्क था, अब ये बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गए हैं, बिज़नेस बिल्कुल लॉस में चला गया, ये 50 लाख रुपीज़ जो इन्होंने बोरो किए हैं, ये या तो फर्म के एसेट से लिए जाएंगे, उससे भी रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो इनके प्राइवेट एसेट्स यूज़ किए जाएंगे। रिस्क चारों बियर करेंगे, बट जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो पहले अग्री किया जाता है। लेट्स सपोज इसने ज़्यादा पैसे लगाए, 1 करोड़ लगाए हैं, इसने 50 लाख लगाए हैं, इसने 20 लाख लगाए हैं, इसने 30 लाख लगाए हैं, तो ये रेशो हो जाता है प्रॉफिट का कि प्रॉफिट जो भी होगा उसका 4% पार्टनर 1 लेगा क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए लगाया है, 50% मतलब 2% पार्टनर बी लेगा, ठीक है, देन 1% पार्टनर 3, देन 1.5% पार्टनर 4। ये रेशो हो गया बिकॉज उन लोगों ने जिस हिसाब से पैसा लगाया उस हिसाब से उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर 1 ने 1 करोड़ रुपए लगाए, उसको 4% प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, पार्टनर बी ने 50% तो उसका आधा जस्ट 2% मिलेगा, पार्टनर बी ने 20 लाख उसको 1%, पार्टनर बी ने 30 लाख उसको 1.5% का रेशियो मिलेगा, राइट। बट it is very important to note that sharing of profit is not a conclusive proof of partnership कि हम पार्टनर्स हैं, we are sharing the profits, then we are partners. Partnership तभी होगी when the firm of organization is being governed by Indian Partnership Act 1932 and the partnership arises as a result of legal agreement between the partners only. रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे पार्टनरशिप उनका स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। Then comes the next point, that is decision making and control. See, all the partners are allowed by law to take part in the management of the business. When they become the partners, they are very much allowed by the law to take part in the management of the business. They may agree to entrust day-to-day management of the firm business to a few or any one of them. See, ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट के सारे डिसीजन वो ले सकते हैं, मैनेजमेंट जो हमारे फर्म में जितने लोग जुड़े हुए हैं, बट अगर हम डे टू डे की बात करें तो उनमें से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है इस चीज़ की जो बाकी तीनों को भी रिपोर्ट करेगा। बट वेन एवर अ क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन इज़ टू बी टेकन, बट इफ़ इन केस कोई क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ जाए तो उसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस टू अ फ्यू और एनी वन ऑफ देम, डेली के जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो तो उनमें से कोई एक पार्टनर ले सकता है या इन्फॉर्म कर देगा बाकी पार्टनर्स को दैट आई हैव टेकन दिस डिसीजन फॉर द फर्म। बट इफ़ देयर इज़ एनी क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन विच इज़ टू बी टेकन, फॉर दैट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज असेंशियल अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। According to Indian Partnership Act, a partnership comes to an end. कब ख़त्म होती है? If a partner retires, पार्टनर रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, he become insolvent. But if the remaining partners agree to continue to work together under the firm's name,
दे कैन कंटिन्यू आफ्टर सेटिंग द क्लेम्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। लेट्स सपोज दीज आर दी 4 पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर के साथ या तो वो रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होगी। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू दे कैन, दीज 3 कैन कंटिन्यू, बट वेन आफ्टर सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। इसे छोड़ दो, लेट्स सपोज ये तो मेन हो गया, इसने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं। लेट्स सपोज पार्टनर 3 ये ही इज़ क्विटिंग, वो अब छोड़ना चाहता है ये बिज़नेस। ये तीनों पार्टनर्स इसका जो पैसा लग रहा था उसके हिसाब से इसके सारे क्लेम्स सेट आउट कर देंगे। इसका कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो फर्म के पास रह जाए। सब कुछ सेटल करके दे कैन कंटिन्यू दी फर्म business, they can continue their business. Okay, next is membership. The minimum number of, it is very important, the minimum number of members required to start a partnership firm is 2. देखो एक से तो होगी नहीं, मिनिमम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एटलीस्ट 2 person are required for partnership and maximum number is 20, not more than that according to law. It may be noted that the partnership firm can't carry on banking and insurance business. पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग या इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वो कोई बिजनेस ही करेंगे, काम करेंगे, इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूड नहीं होता है। मिनिमम पार्टनर्स आर 2, मैक्सिमम आर 20. नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी. देयर मस्ट बी एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. The business of the firm may be carried on by all or any of them acting for all. Existing of mutual agency is the crucial test of partnership. देखो, everything should be mutual in case of partnership. There must be an agency relationship. Like हर पार्टनर प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर होता है, हर पार्टनर प्रोप्राइटर होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है। वो अपनी फर्म के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे जो काम करने हैं वो अपनी फर्म के बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करेगा। या तो वो किसी एक से चलती है कि कोई एक डिसीजन लेकर बाकी फॉलो करेंगे, अगर उसने ज़्यादा पैसा लगाया, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि उसने 1 करोड़ रुपए लगाया, नहीं तो बाकी सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी होती है ये उनकी। एवरीबडी अलोन इज़ अ प्रोप्राइटर एज वेल एज एजेंट फॉर द फर्म, राइट। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा। 2 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, 20 मैक्सिमम होने चाहिए, राइट। एक साथ डिसीजन लेंगे, कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी कैसे होती है अगर इन केस एक पार्टनर क्विट कर देता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप, अभी नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल ट्रेडर के लिए देयर इज़ नो सेपरेट एक्ट फॉर सोल ट्रेडरशिप. Anybody can start up their business alone. What all just he need is capital, पैसा. पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2, मिनिमम इज 2 and maximum are 20 in ordinary business and 10 in case of banking business. पार्टनरशिप फर्म में 20 की स्ट्रेंथ से नहीं कर सकते हैं, बट बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 10 मैक्सिमम होता है। सी, अभी मैंने बेटा आपको बताया था दैट द पार्टनरशिप फर्म्स कांट कैरी ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस, बट सच number 20 number, if they wanted to involve in any banking business, insurance kind of business, so that is the number of people they can start with is maximum minimum 2, maximum 10. Okay, in sole trading concern there is only one owner of the business. ये आपको पता है, सोल ट्रेडर है, ओनली 1 ओनर होता है। Don't get confused in this. I'm again telling you, if they are normally doing any business, the minimum members are 2, maximum are 20. But if they are involved in any banking and insurance business, they can't continue it with maximum 20 member. The members will be 10 for the same agreement. They can only arise as a result of an agreement. एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, केवल तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वन इज़ द ओनली सोल ट्रेडर। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस सीक्रेट्स आर ओपन टू एवरी पार्टनर, हमें हर पार्टनर को सीक्रेट बताने होते हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर कंसर्न द बिजनेस सीक्रेट्स आर नॉट ओपन, इट इज़ विद ओनली द सोल ट्रेडर। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इट इज़ इकोनॉमिकली मोर स्ट्रॉन्ग एज पार्टनर्स कैन रेज मोर कैपिटल एंड ब्रिंग ग्रेटर स्किल्स। ये स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि पार्टनर्स, मैंने आपको बताया था ना, बोरो करेंगे पैसे इन्वेस्टर से, बैंकर से, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, स्किल्स लाएंगे फर्म में,
right? It is economically weak because only one person, only sole trader, the ability of the sole trader to provide capital and skill is limited. कितना पैसा लगा सकता है वो? यहाँ पर देर आर 4 पार्टनर्स, देर 10-20 पार्टनर्स, वो सब मिलकर पैसा मार्केट से लाएंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. Its chances of survival are greater as the partnership firm may be continued even after the death of partner. तो सर्वाइवल ज़्यादा हो गया, हमने पढ़ा था अगर डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है. But in this case, survival is doubtful. It comes to an end with the death of sole trader. Decision making may be delayed as all the partner must agree to the important decision. If any important decision is to be taken, वो कंसर्न किया जाएगा सारे पार्टनर्स के साथ, तो डिसीजन डिले हो सकता है. यहाँ पर द होल सोल ट्रेडर इज सपोज टू टेक डिसीजन फॉर द फर्म, सो it is very quick as the trader is not required to consult anybody. Okay, so today we are done with the feature partnership, the features and the difference between sole trader and partnership. Tomorrow we will discuss the merits and further topics. Have a good learning. Thank you.